Assalamualaikum everyone. Welcome to session number 6, DK Study Hub. Today we're gonna discuss about the remaining two types of economic system. Yesterday we have discussed in detail about what is capitalism and socialism and it's the merits and demerits of capitalism and socialism. Today we are gonna learn about Islamic economic system and its merits, and the other last type of our economic system, which is mixed economic system. We're going to discuss about that in detail. So let's begin. So there's the third type of economic system is called Islamic economic system. Islamic economic system is based on as we all know, based on Quranic and Hadith and the by Holy Prophet and the Quran by God, it is implemented by the rule regulations of Allah Subhanahu wa Taala and God. So there's no demerits in this economic system. And as we all know, Islam is the full code of life and it teaches you how to live your life and how to lead your life. So Allah Ta'ala also gives how to run a country using this system. And this is we could say that this is the best. Islamic economic system is the best system of all economic system because it has no demerits in it. God, why? Because God made this system. This is not human made. That's why it has 0% demerits. So let's discuss what is Islamic economic system. The definition of it is Islamic economic system is a divine system which is given by God in Quran and explained in Hadith by Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him. This system has all merits of capitalism and socialism, but do not have any demerits of them. It emphasizes the fulfillment of all basic necessities of life without any undue restrictions. This economic system has every kind of merits of capitalism, socialism, mixed economy system, and it has 0% of demerits because it is created by God. That's why it has no errors in it. Because as we all know, man-made things always are have defects and stuff like that. But the thing God made, which is part of nature and stuff, it has 0% of demerits and disadvantages like air, like mountains, like everything in this universe has zero demerits because it is created by God. So this is a very interesting and it has 0% of demerits. So yeah, this is for economic system has really good and literally better than every other economic system. So, if we define it in Urdu, we can say that Islamic economic system, a both system, it is a code of life, which can be according to God, हम लोग according to Quran and Hadith, हमें ये सिखाती है कि how to live our life. तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी इसका ही पार्ट है और ये पूरा एक हदीस और कुरान से रिलेट होके बनाया गया है और इसके अंदर ज़ीरो डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स हैं। तो ये बड़ा ही एक अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम माना जाता है जिसके अंदर 0% डीमेरिट है। मतलब ये सबसे अगर हम लोग प्रेफ़रेंस में सबसे टॉप पे होगा मेरे लिए और ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में ही क्योंकि इसके 0 डीमेरिट्स हैं। अब इसके जल्दी से मेरिट्स देख लेते हैं तो सबसे पहले जो मेरिट है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का है राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। इस्लाम के अंदर क्या होता है इस्लाम अलाउज लॉफुल राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑल इंडिविजुअल हैव राइट टू यूज देयर वेल्थ to fulfill their personal needs or utilize to earn more wealth. However, they can use this right in the limited prescribed by Sharia.
एज वी ऑल नो कि हम लोग इस्लामिकली कोई बाउंड नहीं है ना, इस्लाम हमें बाउंड करता है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते या प्राइवेटली कोई ओनरशिप नहीं कर सकते। इस्लाम में कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस्लाम हमें हमेशा इसकी इजाज़त देता है कि सारे इंडिविजुअल्स को राइट है कि वो अपनी वेल्थ को सही तरीके से इन्वेस्ट करें और उसको अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपनी प्राइवेट ओनरशिप को और वेल को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं वेल। वो किस तरह होती है कि आप बिज़नेस वग़ैरह जो कि इस्लाम में हलाल है, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि आप लोग स का जो मेन मकसद है वो अ, वेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, बल्कि इस्लामिक शरिया के अंदर आप लोग जो भी बिजनेस को रन करेंगे वो इस्लाम में अलाउ है। जिसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह जैसे इस टाइप की चीज़ें हैं वो फॉरबिडन है। मतलब वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देती और शरीयत की इजाज़त नहीं देती कि इंटरेस्ट टाइप कोई चीज़ की जाए। तो ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर प्रॉफ़िट या लॉस का दोनों चीज़ें हों और हम प्रॉपर अपना एसेट यूज़ कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट हो, हलाल तरीके से हर चीज़ हो रही हो, तो इस्लाम इसकी टोटली अलाउ करता है। लॉफुली आप लोग एक इंडिविजुअल के तौर पे आपका राइट है कि आप इजीली वेल्थ को अपनी यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड, इसका क्या हार्मनी बिटवीन मटेरियल एंड मॉरल डेवलपमेंट। It is binding on a Muslim to participate in economic activity, should work hard to earn his livelihood. His income should not from have bribe, frauds, cheating, smuggling, or from any other source which is against teaching of Islam. इस्लाम के अंदर क्या है कि हार्मनी है बिटवीन मटेरियल एंड मॉरल डेवलपमेंट। क्योंकि इंसान मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल को अगर हम लोग लिटरल उर्दू में मीनिंग देखें तो उसे अखलाकी कहते हैं। तो इस्लाम के अंदर ये सारी चीज़ें की डेवलपमेंट होती है और एक मुस्लिम एक बाउंड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पार्टिसिप मुस्लिम वगैरह जो है वो इस्लामिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर और अपना वर्क करता है ताकि वो वहाँ अर्न करे और ज़िंदा रह सके और अपने लाइवलीहुड के लिए वो अर्निंग करता है। तो ये सारी चीज़ें सब इस्लाम के अंदर अलाउ है। लेकिन इसकी इनकम अगर चोरी करके तो किसी से ब्राइब यानी कि रिश्वत लेके, फ्रॉड्स करके या चीटिंग करके या स्मगलिंग करके मतलब अनलॉफुल आपने अपने कंट्री का कानून तोड़ के कोई चीज़ स्मगल की या फिर आपने कोई ड्रग्स वगैरह आगे पीछे की और अपने कंट्री में ड्रग्स आप स्मगल करके ले आए, तो ये सारी इस्लाम के अंदर अगेंस्ट टीचिंग ऑफ इस्लाम है और ये अलाउ नहीं है। तो ये वाली इनकम हराम इनकम कहलाई जाएगी। तो ऐसा क्यों इस्लाम में हराम है ये वाली चीज़ें? क्योंकि इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों का मॉरली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे सोसाइटी के ऊपर कि अगर हम किसी से हम कोई चीज़ चुरा लेते हैं तो आपका तो फ़ायदा इसमें होता है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी का इसमें नुकसान है। क्यों नुकसान है कि आपने जिससे ये थेफ्ट की, चोरी की है, फिर वो बंदा आगे से स्ट्रगल करता है। अगर हमने किसी से जैसे बाइक पे कोई मोबाइल या चोरी करने के लिए आ जाते हैं, कुछ आ जाता है, तो फिर वो बंदे का तो फ़ायदा होता है कि वो अपने लिए घर पैसे ले जाते हैं और हमारे मोबाइल फ़ोन्स ले जाते हैं और हमारे क्या लग्ज़री आइटम्स, एक्सपेंसिव चीज़ें लेके चले जाते हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी के लिए वो कितना बुरा है और इस्लाम हमेशा इसके अगेंस्ट होता है। जो सोसाइटी के लिए बहुत बुरी चीज़ है, इस्लाम हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। जैसे थेफ्ट है, अब ब्राइब के अंदर क्या हो रहा है कि 2 पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक बंदा इसके अंदर मजबूर होता है देने के लिए और एक जो बंदा मजबूर करता है देने के लिए। और इस्लाम की है एक हदीस है कि दोनों जहन्नुम में हैं। तो इसलिए क्यों है? क्योंकि सोसाइटी में इसका बड़ा बुरा इम्प्लीमेंट इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो दे रहा होता है, जैसे अगर हम लोग किसी चीज़ में बाउंड है या हम लोग अगर जैसे अपना आईडी कार्ड बनवाने जाएँ या कोई भी ऐसे ऑफ़िस में जाए जो गवर्नमेंट का ऑफ़िस है और उसके अंदर हमसे ब्राइब वग़ैरह ली जाए,
तो उसके अंदर हम जो प्राइस देंगे उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि हमने ज़रा से ज़्यादा पैसे दे दिए और उसने हमारा काम ज़रा जल्दी कर दिया, तो जो दूसरे लोग लाइन्स में लगे हुए होते हैं, तो ओवरऑल वो उनका नुकसान होता है कि वो पूरा-पूरा दिन लाइन में लग के वेट करते हैं और हम लोग जो है प्राइस लेके और अपना काम करवा लेते हैं। तो ये टोटली इस्लाम के अंदर बैन है और इसके अंदर सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हमेशा इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दूसरों का नुकसान नहीं करना और हमेशा दूसरों का फ़ायदा करना है। अगर आपने इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर वो अलाउ नहीं है इस्लाम में, और इस तरह की इनकम को हराम इनकम कंसिडर किया जाता है। मतलब अगेंस्ट है ये टीचिंग ऑफ इस्लाम। टीचिंग हो गई, फ्रॉड हो गया, आपने स्मगल किया, कोई ड्रग सप्लाई करके आप कंट्री में ले आए और जो जो कि इस्लाम वो इंसानी सेहत के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है, ड्रग्स वगैरह। तो आपने वो सोसाइटी के अंदर ड्रग्स फैलाई और लोग उसको अब कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये भी इस्लामिकली भी और हम अगर प्रैक्टिकली भी देखें साइंटिफिकली, तो दोनों तरीके से ये बहुत ही बुरी चीज़ है सोसाइटी के लिए। तो इसलिए इस्लाम हमेशा हमें ऐसी चीज़ों को मना करता है जो कि हमारे लिए बुरी, हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बुरी होती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इस्लाम में अलाउ नहीं है। इंटरेस्ट का भी एलिमेंट इसलिए ही है कि आप बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए आप एक पैसे रखे हुए पैसे को आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे और आपका उसको प्रॉफ़िट आ जाएगा और इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए हराम है कि आपने कोई इसमें हार्ड वर्क नहीं किया, आपने इसके कोई चीज़ नहीं की, आपने प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं किया और आपको बैठे-बैठे पैसे मिल गए, तो ये भी हराम है। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा मना की गई हैं और अगेंस्ट टीचिंग ऑफ इस्लाम है। तो मॉरली अगर हम देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी है, तो हम एक इंडिविजुअल, जैसे हम देख रहे थे कि हम सोशलिज्म या कैपिटलिज्म में एक इंडिविजुअल पे हम लोग या किसी पर्टिकुलर क्लास के ऊपर हम फोकस करके बैठ जाते थे। इसमें ओवरऑल पूरी सोसाइटी को साथ लेके चल रहे होते हैं, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है, तो इसके अंदर किसी का नुकसान नहीं होता और पूरी सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा होता है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड जस्टिस। तो इस्लाम हमें वैसे ही ब्रदरहुड भाईचारे को कहते हैं, तो हमें ये इस्लाम वैसे ही बिलीव करता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे। और अल्लाह ताला ने सारे ह्यूमन बीइंग्स को भाई-बहन बनाया है और ब्रदरहुड बनाया है इस्लाम में। सारे मुसलमान आपस में भाई-बहन हैं। तो इससे क्या होता है कि इक्वालिटी होती है। इस इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इक्वालिटी होता है, जस्टिस होता है, और वो भी इस तरह नहीं होता कि मैन मेड आप लॉज़ को लेके आपने जस्टिस किया। अल्लाह ताला के जो भी लॉज़ हैं उसको हम इम्प्लीमेंट जब प्रॉपर्ली करते हैं और उसके ऊपर हम चलते हैं, अगर किसी ने चोरी की है तो उसके हाथ भी कटने हैं। तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि ओवरऑल पूरी सोसाइटी, अगर एक बंदे के भी हाथ कटेंगे तो पूरी ओवरऑल सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर जब एक बंदा देखेगा कि इस बंदे के हाथ नहीं है और अब वो किस तरह अपनी सर्वाइव कर रहा है, तो फिर बाकी से आइंदा के लिए लोगों के लिए सबक होगा कि सोसाइटी में चोरी बंद हो जाएगी। इसीलिए इस्लाम में बहुत थोड़ी ऐसी सज़ाएँ हैं कि एक बंदे की अगर सज़ा मिलती है तो ओवरऑल पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है और उनको ये नसीहत होती है कि वो नेक्स्ट टाइम पूरी सोसाइटी फिर वो हरकत नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्लाम के अंदर ऐसे गुनाह के काम या हराम काम करने का क्या अंजाम होता है। तो इसलिए इस्लाम के अंदर ब्रदरहुड वगैरह इसलिए होता है, जस्टिस, क्योंकि अल्लाह ताला इसको प्रॉपर्ली, अल्लाह ताला के लॉज़ जब फ़ॉलो होते हैं, तो खुद ही सारे सिस्टम अपना जस्टिस और कानून अगर हम लोग प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, तो अगर हम इस्लामिक लॉज़ वगैरह लगाएँ, तो हमारे जो जस्टिस है वो हमारा कभी भी ख़राब ना हो और इनजस्टिस ना हो कभी भी, और हमेशा इक्वालिटी रहे लोगों के दरमियान। जैसा आजकल इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, ऐसा कभी ना हो अगर इस्लामिक हमारे इकोनॉमिक सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन हो। और बहुत ही सैड और बुरा लगता है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम हमारे
कंट्री के अंदर नहीं है, जो हमारा पाकिस्तान है इसके अंदर हमारे मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम चलता है और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो बड़े ही अजीब सी बात है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करती थी कि कभी कि हमारा शायद इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है ओवरऑल वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है हमारे कंट्री के अंदर। है, ये तो एक डिफरेंट बात है। हमारा 4 पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस है। तो कैपिटलिज्म में क्या होता था कि डिवाइड हमने कर दिया, तो लोगों को क्लास से हम डिवाइड कर रहे थे कि रिच पीपल को कैपिटलिज्म में हम देख रहे थे और रिच क्लास को ज्यादा हम लोग प्रेफरेंस दे रहे थे। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इसके अगेंस्ट है और ऐसा कुछ भी इनजस्टिस नहीं होता है। इकोनॉमिक सबको साथ लेके चलती है, ये किसी को डायरेक्टली हेट नहीं करती, ना रिच पीपल, सब इक्वली ट्रीट करती है सबको। कि अगर क्या कहते हैं एक सोसाइटी में रिच हैं तो वो रिचर नहीं होगा और पुअर भी ऊपर जाएगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे आपको लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में दिख रहा होगा, इट डायरेक्ट rich people should pay zakat to poor people in Islam is against profiteering black market and smuggling। अब एक नॉर्मल सी बात है कि अगर हमारे कंट्री के अंदर गुर्बत है या पुअर्टी है तो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो हम उसके लिए कुछ किया नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि थेफ्ट वगैरह और चोरी स्मगलिंग इस टाइप की चीज़ों में, ब्लैक मार्केटिंग और इस टाइप की चीज़ों में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि वो उससे अर्न कर सके और अपने सरवाइव कर सके सोसाइटी में। जबकि इस्लाम के अंदर अगर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होता है तो रिच जो है वो रिचर नहीं होता, वो अपनी जो वेल्थ है उसका कुछ पोर्शन हर साल पुअर के लिए, जो गरीब लोग होते हैं उनको देता है, ताकि जो पुअर क्लास है हमारी सोसाइटी की वो भी कुछ कर सके और अपने सोसाइटी में उनका भी कोई मकाम हो। तो इसलिए ज़कात वगैरह से क्या होता है कि पुअर भी, हमारा जो पुअर क्लास होती है वो भी एक वक्त आता है कि फिर वो पुअर नहीं रहती और फिर वो भी अपने खुद अर्न करने लगती है। तो ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का फ़ायदा है कि इसके अंदर ज़कात वगैरह ऐसा नहीं होता कि एक स्पेसिफिकली अमीर जो बंदा है वो अमीर तर होता चला जा रहा है और पुअर को कोई देख नहीं रहा। इसके अंदर सब इक्वालिटी और पुअर जो रिच है उसको पुअर को सपोर्ट करता है। ये बहुत सपोर्टिव है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है कि रिच जो है वो ज़कात वगैरह और फिदिया और भी बहुत सारी चीज़ें वो दे के पुअर को सपोर्ट करेगा। और एक वक्त आएगा कि वो पुअर पुअर नहीं रहता, फिर वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और वो भी अपने इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो ये हमारे एक और एडवांटेज है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का। फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अब सोशल तो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या था कि इम्पोर्टेंस नहीं देते थे हम लोग लोगों को और कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता था। लेकिन और इनकम जो है वो एक कांस्टेंट लेवल पे रहती थी और ना प्रमोशन हो रही है ना कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल होता था सोशल। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो सोशलिज्म। तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक थी हमें इनकम मिल रही थी जिससे इन लोगों को ना फायदा हो रहा था नुकसान। और एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रॉपरली नहीं हो रही थी। लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि ओवरऑल उनको जो गरीब लोग हैं या जो वैसे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जॉबलेस हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ताकि हमारा जो ओवरऑल है ये क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में कि रिच, मिडिल एंड पुअर 3 क्लासेस ओवरऑल होती हैं हर पूरी वर्ल्ड में। एक रिच होती है, एक मीडियोकर या मिडिल क्लास होती है और फोर्थ वाली हमारी होती है पुअर क्लास। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ये क्लास बाउंड्रीज भी ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, फिर हमारे सिक्स जो और लास्ट हमारी जो मेरिट है, वैसे इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं लेकिन मैंने, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिर्फ 6 ही लिखे हैं। अगर आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, और अगर आप लोग लिखे तो प्लीज़ मुझे अपने ज़रूर दिखाइएगा कि आपने क्या लिखा, तो फिर मैं आपको इसको करेक्शन करके बता दूंगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या नहीं, सही है या ठीक।
तो लास्ट जो हमारी हेडिंग है वो जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट है। इस्लाम में बैंकिंग वगैरह का सिस्टम, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो पाकिस्तान में भी है अब, उसके अंदर क्या होता है कि रिस्क टेकिंग होता है वो, उसमें रिस्क टेकिंग होता है, इंटरेस्ट वगैरह का नहीं होता। और शरिया इम्प्लीमेंटेशन होती है। रिस्क मैनेजमेंट इज इम्प्लाइड बाय द शरिया कंप्लायंस वेयर इन बैंक्स एंड इन्वेस्टर हैव टू टेक रिस्क टू गेट रिवॉर्ड। मतलब अगर हम वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम किसी जगह इन्वेस्ट करें तो हमें वहां से लॉस भी हो सकता है या नो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इस्लाम जो है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में एग्जैक्टली यही फॉलो होता है और शरिया कंप्लायंस होता है। बैंक में और इन्वेस्टर रिस्क लेते हैं। रिस्क हम रिस्क लेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, वरना इंटरेस्ट की तरह आपको बैठे बैठे हर चीज का रिवॉर्ड नहीं मिलता। ये हमारी इस्लामिक टीचिंग के बिल्कुल खिलाफ है। और भी बहुत सारे रीजन है इंटरेस्ट लेने के, तो मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया क्योंकि वो हमारा बिल्कुल मेन टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा उसको अवॉइड कर रही हूँ। तो ये हमारी जो थी है 6 मेरिट्स थे। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसी बात नहीं है कि अगर आप लोग देखेंगे तो जस्टिस है और ये है, और इसके अंदर प्रॉपर एक बैंकिंग की अगर बात की जाए, जो लास्ट हमारी हेडिंग थी, जो इन्वेस्टर्स वगैरह रिस्क टेकिंग कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग वो हमें प्रोवाइड करते हैं बैंक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस कि किसी और की रिसोर्स हो और हम अपनी वहाँ जाके अपना नाम वगैरह लगा के बिजनेस कर लें, ये भी इस्लाम के अंदर अ, हमारा कहलाता है इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग। और मुशारका मुदारबा जिसे हम कहते हैं कि दो पार्टीज मिलके इन्वेस्ट करती हैं और उस पे प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, तो ये वाला एक सर्टेन रेशो से वो प्रॉफिट लेती हैं। तो ये बिल्कुल हलाल तरीका है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट लेने का। और रेशो दोनों का डिवाइड होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो इसे हम मुशारका कहते हैं। फिर मुदारबा हमारा आता है कि उसके अंदर भी ट्रेडर और हम लोग जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं और बैंक हमें कुछ पैसे प्रोवाइड कर दे, और उसका जो फिर प्रॉफिट होगा वो हम बैंक को भी देंगे और खुद भी लेंगे। तो और इसको हम एक सर्टेन रेशो में डिवाइड कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन करें अपने कंट्री के अंदर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, तो बड़ा अच्छा हमारा वो कंट्री का निज़ाम हो सकता है। लेकिन अफसोस के साथ हमारे कंट्री के अंदर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, बल्कि मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लास्ट इकोनॉमिक सिस्टम पे, मिक्स इकोनॉमी सिस्टम। इसके अंदर क्या है, अब मिक्स इकोनॉमी सिस्टम दैट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी बोथ प्राइवेट बिजनेस एंड गवर्नमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक्स decisions. Here a simple breakdown of its merits and demerits. तो नीचे एक मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम या एक मिक्स इकोनॉमी क्या होती है। मिक्स इकोनॉमी में होता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ये बेसिकली कैसे आया मिक्स इकोनॉमी सिस्टम, जब क्रिटिक्स वगैरह या जिसने दी है, जिसने हमारा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म बनाया था, जिसने कैपिटलिज्म बनाया हुआ था उसका नाम जो है वो लेजी था। और जो जिसने सोशलिज्म बनाया था, वो उन दोनों ने जब देखा कि इन सिस्टम्स के अंदर काफी सारे डीमेरिट्स भी हैं, मेरिट्स के साथ साथ, तो उन लोगों ने फिर एक नया इकोनॉमिक सिस्टम बनाया, क्योंकि इसके बहुत सारे डीमेरिट्स आ रहे थे और लोगों को फेस करने पड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों को कंबाइन करके, दोनों के मेरिट्स को कंबाइन करके ये एक मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम बनाया। और ये एक उन्होंने न्यू इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जो काफ़ी सारे कंट्रीज में आजकल इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इज कंबाइंड।
और इसके अंदर क्या होता है कि प्राइवेटली बिजनेस भी है और गवर्नमेंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। जो कि पाकिस्तान में भी है कि प्राइवेटली बिजनेस भी चल रहा होता है, साथ साथ गवर्नमेंटल चीज़ें भी चल रही होती हैं। जैसे हम पीएसओ की बात करें, या फिर हम लोग पाकिस्तान रेलवेज या बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो टोटली गवर्नमेंट ने ही कंपनीज ली हुई हैं, और वो बड़ा मेन सप्लाई करती हैं। जैसे पीएसओ हो गया, या रेलवेज हो गया, या हमारे वो हो गया, एयरलाइन हो गया पाकिस्तान, पीआईए वगैरह। तो ये सारी गवर्नमेंट ने ओन की हुई हैं। तो और बाकी जो हमारी प्राइवेट कंपनी है जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं, जो रॉ मटेरियल से लेकर फिर वो फिनिश गुड्स तक करती हैं, तो वो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं। तो इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसे हम मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। और इसका सिंपल जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो नीचे हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेरिट्स हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा मेरिट है इस इकोनॉमिक सिस्टम का, बैलेंस ऑफ कंट्रोल है। गवर्नमेंट कैन स्टेप इनटू द regulate and correct market failures while the private business drive innovation and efficiency। गवर्नमेंट इस प्रॉपरली रेगुलेट करती है प्राइवेट कंपनीज को। अगर कोई ये प्राइसिंग वगैरह में ऊपर नीचे गए रहे या मार्केट फेलियर हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल यहाँ से करती है, और वहाँ से हमारी जो प्राइवेट बिजनेस या कंपनीज है वो इनोवेशन और एफिशिएंसी में क्योंकि अच्छी होती हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा सा बैलेंस होता है बिल्कुल हमारी, बैलेंस एंड कंट्रोल होता है हमारी इकोनॉमी में। फिर देन सेकंड हमारा जो मेरिट है वो क्या है, सोशल वेलफेयर है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विस लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर टू सपोर्ट दोज इन नीड। तो सोशल वेलफेयर भी साथ साथ चल रहा होता है, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। तो गवर्नमेंट पब्लिक को हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, जैसे हमने देखा होगा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एज अ सर्विसेज। हेल्थ केयर के हमारे हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो सोशल वेलफेयर भी साथ साथ हो रहा होता है। वरना प्राइवेट कंपनीज जैसे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, फिर वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो लोग विजिट करके उससे फैसिलिटीज़ ले लेते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड जो मेरिट है वो क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट कैन यूज पॉलिसीज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ बूम्स एंड बस्ट। अब वो पॉलिसीज अपनी स्टेबलाइज करते रहते हैं एक लिमिट तक प्रोडक्शन। तो और ऊपर नीचे पॉलिसीज हो रही हैं, और एक रिस्ट्रिक्शन और प्रॉपरली डिसिप्लिन हमारा ओवरऑल कल हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होता है, क्योंकि पॉलिसीज वगैरह स्टेबलाइज होती हैं और गवर्नमेंट उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर रही होती है। तो इसकी वजह से बूम्स वगैरह और बस जो हमारे डिप्रेशन वगैरह के फेजेस हैं वो इम्पैक्ट उसमें कमी आ जाती है। देन लास्ट जो हमारी मेरिट्स की हेडिंग है वो इनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फिर प्राइवेट सेक्टर को भी फ्रीडम है, और पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक ही बात है। तो हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर क्या है, इनकरेज दोनों अपनी अ, तरफ से वो आज़ाद हैं और इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों अपने बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो प्राइवेट बिजनेस को फ्रीडम होता है कि वो इजीली ऑपरेट करे, और अपनी इजीली कंपनीज नई न्यू इनोवेशन हो, और कंपटीशन बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। और आपके पास फ्रीडम जब होता है, लिबर्टी होती है, तो फिर इजीली वो ऑपरेट करते हैं, और कंपटीशन बढ़ता है जिसकी वजह से इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है, और इसकी वजह से फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और हमारे जो डीमेरिट्स हैं इसके वो क्या क्या हैं, कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत होती है, क्योंकि वैसे ओवरऑल देखा जाए तो प्राइवेट हमारी जो कंपनीज होती हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा डीमेरिट है कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। इसकी वजह से पॉलिसीज में अप डाउन और बार बार चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा उनको
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल और इनएफिशिएंसी भी होती है, जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे हमने पाकिस्तान स्टील जैसे था, और बहुत ही बड़ी कोई कंपनी थी और एक ज़माना था, और अब ऐसा हाल है कि वो उसमें इतने इनएफिशिएंट वर्कर्स रखे गए कि वो बिल्कुल अब बंद हो गई है। तो उसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि इनएफिशिएंसी बहुत होती है, इनोवेशन बहुत कम होती है, और ना उसके अंदर प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाते हैं और वो चीज़ बंद हो जाती है। फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से पब्लिक सेक्टर, जो हमारे प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर है, उनको भी बहुत नुकसान है कि पॉलिसीज ऊपर नीचे होती हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। फिर इनइक्वालिटी, while government provides some services, they can be still significant when inequality makes an economy। तो गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पोर्शन रह जाता है जो सिग्निफिकेंटली इनइक्वालिटी हमें शो कर रहा होता है। तो इनइक्वालिटी लोगों के दरमियान आ ही जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपरली कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वो कुछ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देती है। इसकी वजह से वेल्थ प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती और इनइक्वालिटी आ जाती है। फिर ब्यूरोक्रेसी है, ऊपर भी हमने पढ़ा था। ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि वो लीड्स गवर्नमेंट इन्वॉल्व ऑफ्टन लीड्स टू कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन एंड रेड टेप व्हिच कैन स्लो डाउन बिजनेस ऑपरेशंस। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है, और कॉम्प्लेक्स बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। गवर्नमेंट सोशल, लास्ट हमारी जो हेडिंग है वो क्या है कि कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं। द गवर्नमेंट फोकसेस ऑन social welfare, make conflict with business interest, leading to the policy classes and economic uncertainty। जैसे मैंने अभी ऊपर आप लोगों को डिस्कस किया कि पॉलिसीज के चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। इसकी वजह से क्लैशेस आते हैं और इकोनॉमी जो हमारी है वो अनसर्टेनिटी हो जाती है और इम्बैलेंस हो जाती है। तो ये हमारे सारे जो 2 टॉपिक्स थे वो हमारे आज इकोनॉमिक सिस्टम का, ये हमारा मेन जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। ये इसकी मैंने एक छोटी-सी समरी बनाई है, क्योंकि मैंने आपको जब शुरू में, आपको याद होगा जब फर्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एक इकोनॉमिक सिस्टम का अलग से एक वो आता है हमारा सेक्शन। सेक्शन के अंदर हमने कोई से भी एक इकोनॉमिक सिस्टम को लिखना होता है। तो प्रॉपर मैंने आपको चारों के चारों बता दिए हैं। अब आपको जो भी इजी लगता है उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, और इनमें से कोई 3 आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें आपको लिखने होते हैं। तो आप लोग कोई से 2 याद कर सकते हैं या 3 याद कर सकते हैं, और फिर इजीली आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसकी जो समरी है वो मैं पढ़ देती हूँ, फिर हम लोग अपना आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। कि इन summary makes economy seeks to balance the benefit of both free market and government intervention, though it also faces challenges from trying to achieve both economic efficiency and social fairness। दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, और दोनों के लिए बेनिफिट्स हैं फ्री मार्केट एंड गवर्नमेंटल इंटरवेंशन। और ये चैलेंजेस भी बहुत सारे फेस करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी और सोशल फेयरनेस की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है इसको फेस करते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट और की इंटरफेरेंस साथ साथ हमारे जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और मैंने अभी आपको जैसे बताया इसकी एक सेक्शन आता है एडीसी या बीकॉम में, उसको आपने अटेम्प्ट करना होता है, और इनमें से कोई से भी आप 2 या 3 याद कर सकते हैं। तो अगर आपको जो भी इजी लगता है वो वाला आप इकोनॉमिक सिस्टम याद कर सकते हैं। होपफुली आज का टॉपिक भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम आप
नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए डीके स्टडी अब से आई एम लॉगिंग ऑफ। और तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।